Okay, uh, now we are moving forward. We will learn some more operation, that is reducing equation to the simpler form. मतलब इक्वेशन आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट फॉर्म में दी होगी, उसको आपको सिंपल फॉर्म में लेना है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये तो जस्ट टेक द एलसीएम एंड देन इट सॉल्व। ओके, सो we are going to start with question number first. It is given that x upon 2 minus 1 upon 5 is equal to x upon 3 plus 1 upon 4. Its question is of exercise 2.5. So we take the LCM of the both side. So 2 and 5, LCM of 2 and 5 is 10. LCM of 3 and 12 is 3 and 4 is 12. 3 4 ja 12, 5 2 ja 10. LCM means a number which can be comes in the both table, है ना, दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, वो है। सो 2 5 are 10, so it's 5x minus 2, now it's 4x plus 3. Okay, so now see, this becomes, the equation is become in a cross. Now we take we just multiply the cross multiplication. 12 will be multiplied to this part of the equation and 10 will be multiplied to this part of the equation. Okay, see 12 यहाँ पे आ गया और ये 5x minus 2 और ये 10 इधर आ गया 4x plus 3. How can we understand? The number which divides and it will transfer to another side, it will be multiplied. See, 10 is here, divide the number 5x minus 2 and 12 is divided number 4x plus 3. So if the both number is transferred together, so then will be multiplied also. हमको मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है अभी, ऐसे जस्ट मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाके रख देना। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। सी 12 5 जा 60x, ओके, minus 12 2 जा 24, now 10 4 जा 40x plus 30. Now what we have learned in the previous exercise, the number which are not in their side will be transferred to the another side. तो 60x तो ऑलरेडी अपनी जगह पे है, कौन जगह पे नहीं है? 40x, तो माइनस का 40x हो गया। यहाँ 30 ऑलरेडी अपनी जगह पे है, कौन नहीं है? 24, प्लस का 24 हो गया। ओके, सो नाउ इट्स 20x and it's 54. So x is equal to 54 upon 20. The number will become 10, 2 10 is 20, 2 2 is 4, 1 2 7 is 14. So your number is 27 upon 10 is the answer. Is that clear? It is so simple. Third, okay, so we have to solve the equation x plus 7 minus 8x upon 3 7 upon 6 minus 5x upon 2. यहाँ अपॉन में कोई भी नहीं है, तो पहले हम अपॉन में लिख देते हैं, है ना। दिस इज द सॉल्यूशन. We can write x plus 7 upon 1 minus 8x upon 3 is equal to 17 upon 6 minus 5x upon 2. Now we take the LCM separately to the both side. It's 3 LCM left hand side and it is 6 LCM. Now multiply नहीं करना है. 6 is the such a number which comes in the both table. Okay, and it is the lowest number, least number. So 3 1 जा 3. 3 is multiplied the x plus 7 minus 8x. Okay, so it is 6. 7 minus 2 3 is 6. 3 multiplied 5x. Now we will multiply the number. It is 3x plus 7 is 21 minus 8x upon 3. Okay, so it's 17 minus 15x upon 6. Now अब हम क्या करेंगे,
इसको पहले सॉल्व करो, ऊपर का ऊपर से एक्स एक्स वाला हो, तो 3x माइनस 8x मीन्स माइनस 5x प्लस 21/3, इट इज 17 माइनस 15x अपॉन 6। नाउ अगेन देखते हैं एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम नहीं लेना, हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इज 6 मल्टीप्लाइड माइनस 5x प्लस 21 and 3 is multiplied the number 17 minus 15x. So now it's 6 5 is minus 30x plus 21 multiplied 6, it's 6 and 6 to the 12. Okay, 17 3 is 51, 7 is 21, 2 3 and 2 5, so minus 15 3 is 45x. क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अभी देखो सिंपल इक्वेशन बन गई जो हमने पहले पढ़ा था, अब जो अपनी जगह पे नहीं है उनको अपनी जगह पे ले जाएंगे, माइनस 30x, ओके, तो इट्स प्लस 45x, 51 की जगह पे है, माइनस 126, ये रह गया आपका 15x, ओके, तो इसमें से माइनस करो 126 में से 51, ये 5, ओके, एंड 6 7 8 9 10 11 12 7, इट्स 75। तो एक्स की वैल्यू इसमें डिवाइड करेंगे, टेबल बोलो 15 का 75, सो 5 इज द आंसर। क्लियर, ये माइनस का है तो माइनस रह जाएगा और यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा, तो यू कैन राइट -5। ओके, कैसे आया माइनस में, बिकॉज 126 इज ग्रेटर देन 51, तो माइनस किया तो ये आया, यहाँ पे तो ये माइनस किया तो वैसे ही हो गया प्लस में। ओके, सो दिस इज द आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वी टेक द एलसीएम, m अपॉन 1 माइनस m माइनस 1 अपॉन 2। सी यहाँ पे जो m यूज लिया है, m इज ऑल्सो वेरिएबल है ना, सो डोंट थिंक कि अभी m आ गया, नो, इट इज ऑल्सो वेरिएबल। जैसे हम पहले x को सॉल्व करते थे, इन द सेम मैनर वी विल सॉल्व m, 1 अपॉन 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। सबसे पहला स्टेप सबको एलसीएम रूप में लाना है, फिर यू टेक द एलसीएम सेपरेटली ऑफ द बोथ साइड, और उसके बाद सॉल्व करना, ये 2m हो गया माइनस m माइनस 1, देखो 1 मल्टीप्लाई करेगा इस पूरे को, मैंने ब्रैकेट में डाला क्योंकि साइन चेंज होगा, यहाँ पे गलती यहीं पे होती है। ओके, सो इट इज 3 माइनस इधर भी m माइनस 2 ब्रैकेट में डाल दिया। अब आप चाहें तो यहाँ 1 लिखो, नहीं लिखो तब भी चलता है, 1 लिख के देख लेते हैं ताकि आपको समझ जाएगा। यहाँ मैंने नहीं लिखा है तो लिख के बता देता हूँ आपको, 1 माइनस, ओके, सो नाउ 2m minus m plus 1, so this is your left side। now 3 minus m plus 2 upon 3, got it। अभी पहले हम ऊपर को वाले को जो m वाले को सॉल्व कर देते, 2m minus m m plus 1 upon 2, okay, now it's minus m 3 plus 2 5 upon 3। now we will do the cross multiplication, 3 is multiplied m plus 1 and 2 is multiplied minus m plus 5, so now it's 3m plus 3 minus 2m plus 5 to the 10, got it। so 3m प्लस 2m, ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, ये 10 माइनस का प्लस का 3 माइनस का 3 हो गया, सो इट इज 5m इज इक्वल टू 7, m इज इक्वल टू 7 अपॉन 5, दिस इज द आंसर। क्लियर, इट इज सो सिंपल। द क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो अब मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है तो इट विल बी मल्टीप्लाइड द ऑल नंबर विच आर इन दी ब्रैकेट्स। ओके,
So 15 is multiplied to the y is 15y minus 15 4 ja 60 minus 2y minus minus plus 18 plus 5y plus 30 is equal to 0. क्लियर? चलो आगे बढ़ो. अभी y वालों को देखो, अंडरलाइन करो. ये 15, ये 2 माइनस का और ये 5. इन सबको पहले पास पास में लिखता है, आपको समझ में आ जाएगा, है ना. 15y माइनस 2y प्लस 5y, ये सब अपनी जगह पे है. अब जो जगह पर नहीं है उनको ले जाओ. माइनस 60 प्लस का 60 प्लस का 18 माइनस का 18 प्लस का 30 माइनस का 30. आगे अपनी जगह पे बन गई इक्वेशन. चलो अब आगे देखते हैं. अब प्लस प्लस वाला को 15 प्लस 5 प्लस प्लस वाला को ऐड करो. 15 प्लस 5 20y माइनस 2y. नाउ अगेन माइनस माइनस वाला को ऐड करो. ये 60 ऐसे जाएगा माइनस 48. क्लियर? चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं. 20y माइनस 2y, तो ये बच गया आपका 18y. ओके, नाउ 60 माइनस 48 12. आप देखो करके देखो, कभी भी कंफर्म कर देना, जल्दबाजी नहीं करना. 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 4 1. जल्दबाजी करने से गड़बड़ जाती है. 12. ओके, सो हम इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर देते हैं. y is equal to 12 upon 18. Okay, now the both are comes in the multiples in the table of 2, or you can say that multiples of 6. 6 to the 12, 6 to the 18. So your answer is 2 upon 3. So the value of y is 2 by 3 is the answer. Clear? By watching this video, if you look at this question, you will see there is a decimal in the both side, and I think you have a little bit fear of the decimal. आपके अंदर थोड़ा सा एक डर है पॉइंट आने. अब क्या है? No problem. If you have any problem with the decimal, we will remove it. हटा दो इसको, प्रॉब्लम है तो. चलिए हटाते हैं. 25 upon 100 4f minus 3 and 5 upon 100 10f minus 9. ओके, अभी क्या करना है इसको. देखो यहाँ पे भी अपॉन में है 100 और यहाँ भी अपॉन में 100 है. अब अगर अच्छा है तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको करके बताऊँगा, उसके बाद अपन काटेंगे, है ना. ये 100 इसको मल्टीप्लाई करेगा. 100 यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या बचा 25, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 4f माइनस 3 को. ओके, फिर ये 100 इधर आएगा, ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है 10f माइनस 9 को. और ये बात समझ में आई आपको? अब अगर आप चाहें तो 100 को यहीं पे काट सकते हैं. 100 इज कैंसिल बाय 100, तो यहीं पे काट देना चाहिए ना, लेकिन अब आपको समझाने के लिए मैंने एक स्टेप आगे बढ़ाया. सो नाउ ये नंबर इज 25 मल्टीप्लाई 4f, मतलब 25 4 जा 100f माइनस 25 3 जा 75. सो 10 5 जा 50f माइनस 9 5 जा 45. देखो द कंप्लीट इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फॉर्म में. आ गया कहाँ ये इक्वेशन दे, कहाँ ये है ना. सो ये जस्ट लिटिल बिट सेंस कि कैसे करने से होगा. हमने हमारे को प्रॉब्लम पॉइंट से थी, पॉइंट पे हमने हटा दिया. चलिए अभी जो हम करते हैं, ट्रांसपोर्ट द वैल्यू 100f माइनस 50f इज इक्वल टू माइनस 45 प्लस 75. गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं. 100 माइनस 50 इट्स 50f इज इक्वल टू 75 में से 45 माइनस करो, कितना आता है 30. सो इट्स 30. क्लियर? नाउ बड़ा तो वही नहीं है. ओके, सो f इज इक्वल टू 30 अपॉन 50. सो इट्स कैंसिल. सो इट्स 3 अपॉन 5. अगर आप चाहे तो इसको भी आंसर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम.
अगर आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट में क्वेश्चन था, इट इज़ ऑल्सो योर आंसर। और दूसरा भी निकाल सकते हैं, 3/5 है, मैंने इसको 10 बनाया, तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 में हो गया, कितना बन गया 6/10। सो योर आंसर इज 0.6। द वैल्यू ऑफ f इज 0.6 इज द आंसर। क्लियर? सो इट इज सो simple. So now we are moving to the question number first of the exercise 2.6. Okay, so the question is solve the following equation: 8x minus 3 upon 3x is equal to 2. Okay, चलो सॉल्व करते हैं, है ना। सो जो अपनी जगह पे नहीं है उसको ले जाओ, ये डिवाइड कर रहा है, वहाँ पे क्या करेगा मल्टीप्लाई। 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और ये 3x आ गया। क्लियर? 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6x, जो अपनी जगह पे नहीं है वहाँ ले जाओ। 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 3, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया। सो 8 माइनस 6x इज 2x इज इक्वल टू 3। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3/2। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? इट इज सो सिंपल, है ना। कितना सिंपल है। टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.6 we will use the cross multiplication, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 मल्टीप्लाई 2z 9z मल्टीप्लाई करेगा और 4 मल्टीप्लाई करेगा इसको z प्लस 15, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ आगे चलो, ये हो गया आपका 9z, ये 4z प्लस 15 4 जा 16। अब तो सेम थिंग आपको समझ में आ गया होगा, 9z माइनस 4z इज इक्वल टू 60। Clear? Now 9z minus 4z it is 5z is equal to 60 and z is equal to 60/5. It's 5 12 is 60 और 12 5 is 60, जो भी आप बोलना चाहें। The answer is 12. 5 into 5, 5 into 5, 5 into 10. So the answer is 12. Clear? It is so simple. Question number 5 of exercise 2.6. See, इसमें भी कुछ नहीं करना है, you will just use the same formula by cross multiplication. Okay, तो इसको ब्रैकेट में डालो, 7y प्लस 4 3 will multiply इज इक्वल टू माइनस 4 मल्टीप्लाई करेगा इसको y प्लस 2। क्लियर? देखो सिंपल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। 7 3 जा 21y प्लस 3 4 जा 12 माइनस 4y प्लस माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8। ओके, सो हेयर 21y माइनस का प्लस 4y माइनस 8 माइनस 12। क्लियर? सो इट इज 25y it is minus 20. Clear? So y is equal to minus 20/25. So 5 5s are 25, 5 4 are 20. So your answer is minus 4/5. It is your answer. Clear? It's so simple. Hari and Harry is 5:7. 4 years from now, आज से 4 साल बाद the age will be 3:4. So इसका मतलब हुआ कि let their both age are multiple of
So it is 5x upon 7x, यही होगा. But after 4 years, so हम लिखेंगे आफ्टर 4 years क्या हो गया, 5x प्लस 4 एंड 7x प्लस 4. तो ऐसा करने से क्या होता है, इनका रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है, 3/4 हो जाता है. क्या हो जाता है, 3/4. क्लियर. सो अब वही वाला क्वेश्चन आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 5x प्लस 4, 3 ये आ गया 7x प्लस 4. ओके, सो इट इज़ 20x प्लस 16, 21x प्लस 12. So 20x minus 21x, 12 minus 16. So now it's minus x and minus 4. Minus minus is cancelled. Therefore the value of x is 4. Clear. Value of x is 4. अब इसने बोला फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो अब इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है. क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज. तो हैरीज एज वो हो जाएगा आपका 5x मीन्स 5 मल्टीप्लाइड 4, इट इज 20 years. एंड हैरी ये रहेगा आपका 7x मीन्स 7 multiplied 4. Okay, so 7 4 जा 28 years. तो आपके हरी जो है वो 20 years का है. एक तो ये आंसर हो गया आपका, और दूसरा जो है वो हैरी वो है 28 years का. सो देयर आर 2 आंसर्स. क्योंकि इसने पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज. क्लियर. इट इज वेरी simple question.